Hello everyone. Once again a very welcome to all of you. In the previous video we have discussed free radical substitution reactions in alkanes. There we discussed the general information about the free radical substitution reactions in alkanes. Here in this video we have learned about the chlorination of methane and also learned about selectivity. So first of all, as we have told you in last video, halogenation of alkane is a substitution reaction, and the second one is there is a multiple substitutions takes place. Here we can see whenever methane is react with chlorine in the presence of light or heat, it form initially methyl chloride and hydrogen chloride. Here one of the hydrogen is substituted by a chlorine atom. That's why methyl chloride is formed. Here we are not discussing here the mechanism we discussed in the next video. Then methyl chloride then again react with chlorine with under same condition to form dichloromethane. In this reaction, one more hydrogen is replaced by chlorine atom. This reaction proceeds in this manner until all the hydrogens are substituted by chlorine atom. Therefore, the last product which formed here is tetrachloromethane or carbon tetrachloride. So this reaction it tells about the both 2 points which I have discussed earlier. This is a substitution reaction and there is a multiple substitution takes place. This is chlorination of most of higher alkanes give a mixture of monochloro as well as more highly halogenated compounds. As you can see here these methyl hydrogens are one types and these hydrogens of methine carbon is another type. That's why there is a two products are formed which are percentage of 48% and 29% plus and also a polychlorinated products and HCl. So this is another example of multiple substitution reaction of in higher alkenes. Note the point which is important. You all have to know the reactivity order of halogens. Fluorine is more reactive than chlorine. Chlorine is more reactive than bromine, and bromine is more reactive than iodine. So fluorine is the most reactive, and the iodine is the most unreactive halogen towards alkenes. So, by remembering this reactivity order, the chlorine is relatively unselective. That is because it is more reactive, then that's why this is less selective. So because I have told you the reactivity order is of halogen. F2 is more reactive than Cl2, is more reactive than Br2, is more reactive to iodine. So iodine is almost unreactive towards alkane and fluorine is more reactive towards alkane. So these two require a special condition. If you have to done fluorination or iodination of alkanes, these two cases require special conditions to form methyl fluoride and methyl iodide. In both, the most common reaction of alkanes is chlorination and bromination. In these two, chlorination, fluorine is more reactive and bromine is less reactive. The more reactive means less selective.
Less reactive means more selective. That's why bromine is more selective and chlorine is less selective. तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा यानी जो लेस सेलेक्टिव होगा तो उसमें क्या होगा, जितने हाइड्रोजन्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, क्लोरीन एटम से. लेकिन जो लेस रिएक्टिव होगा यानी वो सेलेक्टिव ज़्यादा होगा तो उसमें वही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट सबसे ज़्यादा होगा जिसका इंटरमीडिएट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल. तो अगर इंटरमीडिएट जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा. किस केस में, यदि आप किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ब्रोमीन से. तो ये चीज़ आपको समझनी है. तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो इसलिए जो क्लोरीनेशन है वो कह रहा है कि नॉट सिंथेटिकली यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक एल्काइल क्लोराइड बिकॉज एल्केन क्लोरीनेशन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्लोरीन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन. दैट्स वाई वो क्या है, लेस सेलेक्टिव है. इसलिए वो क्या करेगा कि जो भी डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको रिप्लेस करेगा किससे, क्लोरीन से. तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ से इसने रिप्लेस किया तो ये बना, और जब इमिस वाले को किया तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना, और साथ में पॉलीक्लोरीनेटेड मतलब ये हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हुए होंगे Cl से. तो बहुत सारे आपको पॉलीक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स भी मिल गए. क्यों, क्योंकि इसकी सेलेक्टिविटी कम है. ठीक है, इसलिए वो कह रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लोरीनेशन. अगर आपको कोई स्पेसिफिक आपको बनाना है प्रोडक्ट तो उसमें क्या होगा, उसके साथ बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाएंगे. इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस कब है कि जब सारे हाइड्रोजन सेम्स हो. जैसे इस केस में ऑल द मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम. दैट्स वाई दीज मिथाइल आर इन दीज हाइड्रोजन्स आर द सेम. तो दैट्स वाई इन दैट केस one hydrogen is replaced by one Cl and the product is neopentyl chloride. If there are two or more types of hydrogens, then there is a formation of a mixture of complex products. ठीक है. Now the bromine, as I have told you earlier, the bromine is less reactive towards alkanes. That's why it is more selective or regioselective in the site of attack where it does react. वो कहाँ उसको रिएक्ट करना है, उस रिएक्शन को कहाँ से वो करेगा जिससे इंटरमीडिएट क्या बने, ज़्यादा स्टेबल बने. इसलिए वो क्या है, ज़्यादा सेलेक्टिव बन गया. तो जैसे इस केस में अगर आप देखें CH3 CH3 CH CH3 ये कंपाउंड है. तो इसमें आपको देख रहे हैं ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं ये सेम एनवायरनमेंट में थे, तीनों हाइड्रोजन सेम है CH3 CH3 में, यानी वो पार्ट है मिथाइल यूनिट का, और ये जो हाइड्रोजन है ये पार्ट है मिथाइल यूनिट का. तो इससे पहले केस में आपने क्या देखा था कि जब क्लोरीनेशन हुआ था इसी कंपाउंड का तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिले थे. एक 48% मिला था, एक 29% मिला था और एक 23% मिला था. ठीक है, तो आपको क्या मिला था, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिला था कि जो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट थे उनका मिक्सचर मिला आपको. लेकिन जब आपने इसको रिएक्शन ब्रोमीन से कराई तो अगर आप इस केस में देखें तो आपको ये कंपाउंड मेजर मिला और जो बाकी दूसरा वाला बना था वो ट्रेस में बना. यानी मोर देन 99% जो था उसमें कौन सा प्रोडक्ट था जिसमें जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कहाँ से हुआ है, मिथाइल यूनिट से रिप्लेस ना होकर किससे रिप्लेस हुआ है, मिथाइन यूनिट से, CH यूनिट से. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि H जब यहाँ से ये बॉन्ड जब फिशन होगा तो ये होमोलिटिकल बॉन्ड फिशन जब होगा तो यहाँ से जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो 3 डिग्री होगा, वो ये बनेगा. दैट इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल. और यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है यानी यहां से मिथाइल वाला जो हाइड्रोजन है वो होमोलिटिकल बॉन्ड फिशन होता है तो ये बनेगा. दिस इज अ 1 डिग्री फ्री रेडिकल. तो आप जानते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री. समझ में? तो क्योंकि ब्रोमीन रिएक्टिविटी कम है यानी उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो सेलेक्टिव ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा कि जो ज़्यादा स्टेबल हो. और ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब याला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा. ये याला हाइड्रोजन क्या होगा, फ्री रेडिकल की तरह बाहर जाएगा.
तो यहाँ जब रेडिकल से जाएगा तो एच रेडिकल बी आर रेडिकल, यानी एच बी आर बाहर हो जाएगा और यहाँ से बी आर अटैच्ड होगा। इसलिए ये कंपाउंड जो होगा, जो कि इसका इंटरमीडिएट 3 डिग्री फ्री रेडिकल था, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल हो गया। इस कारण इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 99% है। और अगर मिथाइल से करें तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट होता, इसलिए इससे बनने वाला जो कंपाउंड बना है वो ट्रेसेस में है, यानी बहुत ही उसका जो परसेंटेज है 1% से भी बहुत कम है। ठीक है ना। तो इस ऐसे ही अगर हम देखें फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, इसलिए वो और कम सेलेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू सेल। तो ये एक अनदर एस्पेक्ट है जब भी हम डिस्कस करते हैं तो सेलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन। थैंक यू वेरी मच।